Good evening, everyone. So, this is another important topic, and recently, even Bloomberg's report has mentioned copper as the new oil. So, do you know that copper is now being called as new oil? क्या आपको ये पता था? As the world shifts towards renewable energy and electrical vehicle, दिस मेटल इज बिकमिंग इवन मोर वैल्यूएबल. ये मेटल जो है और भी वैल्यूएबल बनता जा रहा है देन एवर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई इज कॉपर सो वैल्यूएबल? व्हाई इज कॉपर सो इंपॉर्टेंट? एंड हाउ इट कुड चेंज द फ्यूचर ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी and even the global economy. Basically, this whole video would try to break it down. Stay with me for the next 10 minutes and believe me, I'll make the things easier for you. Okay, so let us understand कि what is the context. Context इसका क्या है? अभी 3-4 important books and reports को compile करके I have made this. Recently it was in news कि all three, not both, India, China and the USA, they all are racing to secure supplies of copper. Copper का supply के लिए all three countries, India, China and USA, they are racing. Okay. In fact, फरवरी 27 की एक रिपोर्ट आई थी कि इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज सिक्योर्ड अ 9,000 किलोमीटर स्क्वायर ब्लॉक. कहां? जाम्बिया में, टू एक्सप्लोर कॉपर एंड कोबाल्ट इन दैट पर्टिकुलर रीजन. अभी ये फरवरी 27 की रिपोर्ट थी और एक सप्ताह पहले ही अ फैक्ट शीट वाज पब्लिश्ड बाय व्हाइट हाउस. इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा ऑन थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ कॉपर, जहां पे दे हैव एनालाइज्ड कि बिकॉज ऑफ ओवर रिलायंस ऑन इंपोर्ट ऑफ कॉपर हाउ इट कैन जियोपार्डाइज द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एंड फरवरी 17 को एक रिपोर्ट ब्लूमबर्ग की आई थी दैट चाइना इज मूविंग टू रन इन स्मेल्टिंग ओवर कैपेसिटी. सो बेसिकली चाइना इज नाउ नॉट अलाउइंग मोर स्मेल्टिंग कैपेसिटी. अब स्मेल्टिंग कैपेसिटी के लिए चाइना ने एक कंडीशन वहां रख दिया है, इफ यू वांट टू इंक्रीज या एक्सपैंड स्मेल्टिंग कैपेसिटी, सो इन दैट केस you need to have a long term agreement with some mining countries जहां पे copper mine होता है, then only you can proceed with a smelting capacity. Okay, so सबसे पहले let me tell you the credibility of the sources of information that has been discussed over here. मैंने 3 sources other than newspaper, Hindu and Indian Express को छोड़ने के अलावा I have followed 3 important sources. One is a book Chip War by Mr. Chris Miller. So Chris Miller के द्वारा, and then I have looked at the Goldman Sachs report, where first time it was in this report in 2021, first time Goldman Sachs actually called copper as the new oil, and it has given the reason behind it also. And then another important argument has been given by Visual Capitalist. So these are the sources of my information. अब पहले ये समझना है कि what is the significance of copper. So before explaining this, let me tell you few things. चिपमैन जैसे चिप वॉर में what exactly प्रोफेसर क्रिस मिलर has said. प्रोफेसर क्रिस मिलर ने बहुत ही अच्छी बात बोली. उन्होंने बोला कि वर्ल्ड वॉर 2 was decided by steel and aluminium, okay, and followed shortly thereafter by the Cold War, which was defined by atomic weapons. But current rivalry between USA China, it will be determined by computing power. That is, basically he is talking about chips and copper. Two things would be very much significant in the coming time. One is chips and one is copper. That would determine who would be the next hegemon. This is what Professor Chris Miller has said in his book Chip War. 2021 में Goldman Sachs first time declared copper as the new oil. मैंने पहले भी बताया कि this was declared back in 2021, and in 2023 IMF का एक forecast है that copper demand to rise by over 66% from 2020 to 2040 as the world transition away from oil. जो कॉपर का डिमांड है in the base level scenario, it would rise at least by 66% by
2040, which is a very high rise. Okay, so let us understand why demand for copper. There are multiple other reasons. आपने बहुत सारे appliances में copper का use देखा होगा, including in your electric fan. But in addition to that, recently the demand for copper is being driven. These are the factors that which are leading the pack. The one is driven by clean energy transition and electric vehicle production. अब copper का use बहुत ज़्यादा है. So generally एक single electric vehicle जो है, it contains 4 times more copper than a traditional combustion engine vehicle. Generally traditional combustion engine में you require somewhere around 15 kg to 18 kg of copper, but in single electric vehicle you require somewhere around 60 to 83 kg of copper. Okay, and one more thing, under a net zero emission scenario we all want to achieve this कि नेट जीरो हो जाए, सो दैट अब ड्यू टू लेस कार्बन स्पेस, अब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन ना हो, क्लाइमेट चेंज ना हो. सो ग्लोबल कॉपर डिमांड इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 25 मिलियन टन्स इन 2023 टू 39 मिलियन टन्स बाय 2040. अभी हमने देखा था कि वर्ल्ड IMF का जो फोरकास्ट है, इट इज गोइंग टू राइज बाय 66%. डोंट यू थिंक इट्स लाइक अ कंप्लीट मैच? करीब करीब 25 मिलियन से 39 मिलियन जो है, दैट राइज वुड बी समवेयर अराउंड 55-56%. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड, कुड कॉपर बी द नेक्स्ट ऑयल? अब ये देखो आप खुद, दिस इज द केस ऑफ नेट जीरो इमिशन सिनेरियो. सो नेट जीरो इमिशन सिनेरियो में ऑफ कोर्स द ओवरऑल आवर डिपेंडेंस अपॉन क्रूड ऑयल वुड कम डाउन. दिस इज गोइंग डाउन. सो अभी we require 91.2 million barrels per day. Net zero scenario में this would come down to 66 million. But net zero emission scenario में the overall production of copper needs to be elevated from 23.5 million tons to at least 39.1 million ton by 2040. And that explain why it is considered as the next oil. अब ये एक्सप्लेन करता है कि वाई इट इज कंसिडर्ड एज द नेक्स्ट ऑयल. ओके, एंड येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे इट वाज इन न्यूज कि इंडिया, इन ऑर्डर टू मीट इट्स कॉपर डिमांड इन द शॉर्ट टर्म, इंडिया इज ट्राइंग टू सिक्योर बोथ ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड मिनरल एसेट इन कॉपर रिच कंट्रीज सच एज जाम्बिया, चिली एंड DRC. वी आर ट्राइंग टू गेट सिक्योर बोथ फील्ड. ग्रीनफील्ड जहां मिलता है वहां भी ठीक है, ब्राउनफील्ड in all the copper rich countries. So let us understand what is happening now. अभी हो क्या रहा है, आगे ग्लोबल कंटेक्स्ट को समझते हैं. ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि इंडिया, चाइना एंड USA दे ऑल आर रेसिंग टू सिक्योर सप्लाईज ऑफ कॉपर. किसी भी हालत में इनको कॉपर का सप्लाई चाहिए, एंड दिस रेस विल फर्दर इंटेंसिफाई ओवर द नेक्स्ट डिकेड बिकॉज ऑफ नेट जीरो सिनेरियो. ऑल कंट्री वांट टू अचीव नेट जीरो सिनेरियो. ओके, दैट्स द वन थिंग. अभी रिसेंटली एक व्हाइट हाउस की एक रिपोर्ट आई थी वेयर व्हाइट हाउस हैज वार्न्ड दैट ओवर रिलायंस ऑन फॉरेन कॉपर कुड जियोपार्डाइज US डिफेंस कैपेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. ऑलरेडी मैंने बताया था इसके बारे में कि व्हाइट हाउस ने वहाँ पे वार्न किया है कि फॉरेन कॉपर पे ज़्यादा रिलायंट नहीं होना है. दैट वुड अल्टीमेटली जियोपार्डाइज द डिफेंस कैपेबिलिटी ऑफ द USA. इन एडिशन अभी मैंने बताया कि चाइना इज ऑलरेडी मूविंग टू रेन इन स्मेल्टिंग ओवर कैपेसिटी, जबकि यू वॉन्ट बिलीव हाफ ऑफ द वर्ल्ड का स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग कैपेसिटी ऑफ कॉपर is controlled by none other than China. China controls half of the world's smelting and refining capacity. Another important thing is कि India recently acquired a 9,000 kilometer square block in Zambia to explore both copper and cobalt. And अभी प्रॉब्लम क्या है? Why are we acquiring? Why are we racing with USA and China when it comes to overall supplies of copper? Because what you will find कि over a period of time इंडिया का खुद का प्रोडक्शन लेवल हैज स्टैग्नेटेड एंड हैज कम डाउन. अभी देखो मैं कुछ आपके सामने डेटा देता हूं. डोमेस्टिक ओर प्रोडक्शन जो कॉपर का है दैट वाज
3.78 million tons in 2023-2024, which is 8% lower than in 2018-19. सिमिलर कंडीशंस हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा भी रिपोर्ट किया गया है। ओवरऑल ईयर टू ईयर पिछले साल अप्रैल से लेकर जनवरी 2025 में जो टोटल ओर का प्रोडक्शन हुआ है दैट इज 6% लोअर देन अप्रैल टू जनवरी 2024 के बीच का प्रोडक्शन। सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। इन एडिशन टू दैट वी आर इंपोर्टिंग कॉपर कॉन्सेंट्रेट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड जो टोटल जो कॉस्ट है दैट हैव ऑल्सो डबल्ड इन वैल्यू टर्म्स। 26,000 करोड़ का वी हैव इंपोर्टेड कॉपर कॉन्सेंट्रेट इन 23-24 vis-a-vis 2018-19. 2018-19 में it was somewhere around 14,000 crore. So that has also doubled. So ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास अपना कॉपर डिपॉजिट्स नहीं है। वी हैव ऑलरेडी लार्ज कॉपर डिपॉजिट्स। अब ये आपका काम है कि आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि विच इज द स्टेट एंड इंपॉर्टेंट कॉपर माइनिंग रीजन इन इंडिया। ऑल द इंपॉर्टेंट कॉपर माइनिंग रीजन इन इंडिया, इसके बारे में सर्च कीजिए माइनिंग रीजन ऑफ इंडिया एंड देन टेल मी इन कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट कॉपर माइनिंग रीजन इंडिया में है, कौन सा स्टेट है दैट हैज गॉटन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कॉपर रिजर्व्स इन इंडिया। प्लीज डू कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन। ओके, सो इंडिया के पास ऑलरेडी कॉपर डिपॉजिट है बट इट रिक्वायर एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन। ऑफन सेड कि 17 साल यू नीड ऑन एन एवरेज टू ऑपरेशनलाइज अ कॉपर माइन। अगर आप ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ले रहे हो तो कम से कम 17 साल आपको लगेगा टू ऑपरेशनलाइज कॉपर माइन टू मीट डिमांड इन द शॉर्ट टर्म। दैट इज वाई इंडिया इज trying to acquire more and more lands in different parts of the world, including in Zambia, Chile and Democratic Republic of Congo. एक और कारण है कि जो डिपॉजिट्स इन कंट्रीज में है, चाहे जाम्बिया हो गया, चिली हो गया, डीआरसी हो गया, इनके अलावा भी जो कंट्रीज हैं तो वहां पे typically it's of higher grade than in India. That is another important reason why India wants to acquire from them. Or due to too much demand of copper, graphite and lithium, African profile has risen. Importance of Africa has gone up. Okay, so continent अभी खुद आप देखना कि अफ्रीका alone accounts for 70% of global cobalt production. वर्ल्ड का 70% जो ग्लोबल कोबाल्ट है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अफ्रीका एंड 16% ऑफ ग्लोबल कॉपर प्रोडक्शन। इनफैक्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की 2024 की रिपोर्ट है दैट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो is on course to become the world's second largest copper supplier by 2030. वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर जो है डीआरसी बन जाएगा बाय 2030। इनफैक्ट जाम्बिया जहां अभी हम 9,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अभी लिए हैं दैट इज द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट इज चिली, सेकेंड इज पेरू एंड थर्ड इज DRC. These are the three countries. This is important for prelims also. ये प्री का भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कीप दैट इन योर माइंड। नेक्स्ट इज अभी कंसर्न्स क्या है व्हेन इट कम्स टू अमेरिका। अमेरिका जो रिसेंटली बताया तो था कि व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट रिलीज किया था। एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप हैज साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वेयर डोनाल्ड ट्रंप हैज लॉन्च्ड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू हाउ कॉपर इंपोर्ट्स थ्रेटन अमेरिकाज नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब यहां पे व्हाइट हाउस फैक्ट शीट ने ये नोट किया है कि कॉपर प्लेज अ वाइटल रोल इन डिफेंस एप्लीकेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। और यू वॉन्ट बिलीव कि यूएसए का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसका सेकेंड मोस्ट यूटिलाइज्ड मटेरियल अगर कुछ है सो दैट इज कॉपर। ओके, सो लेकिन when it comes to अमेरिका का अपना स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग कैपेसिटी, अमेरिका इज नॉट अमंग द टॉप 5 कंट्रीज इन दिस कैपेसिटी, टॉप 5 पे भी नहीं है। ओके, सो दिस इन्वेस्टिगेशन जो प्रेसिडेंट ने अभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, द पर्पस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज टू आइडेंटिफाई ऑल द वल्नरेबिलिटीज एंड देन एट द सेम टाइम
to increase production and enhance the resilience of America's domestic copper industry. अभी इंडिया के लिए क्या क्या वे फॉरवर्ड है, बिकॉज इंडिया के लिए भी दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड राइट नाउ, अभी हमारे लिए जो जरूरी है वो ये समझना है दैट फर्स्ट थिंग इज डिवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई सोर्सेज. वी डू नॉट नीड टू रिमेन डिपेंडेंट ऑन वन पर्टिकुलर कंट्री. तो यहां पे चिली हो गया, पेरू हो गया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, डीआरसी हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जाम्बिया हो गया. सो ऑल दीज कंट्रीज के साथ वी कैन diversify our supply sources so that our dependence on any one particular country get reduced. Second important thing is, अभी बताया कि इंडिया के पास ऑलरेडी अपना रिजर्व काफी है, सो डोंट डिपेंड ऑन अदर, इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन. ठीक है, इट वुड टेक टाइम, बट आफ्टर 10 years, after 12 years, we would become self-reliant. Next is, enhance recycling effort. Already आपको पता है कि कॉपर इज वेरी इको फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव. रिसाइकलिंग कॉपर जो है दैट इज अ वेरी इको फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे. सो दिस वुड हेल्प इंडिया टू नॉट जस्ट सेव import cost, but at the same time it would also be environmentally more environmentally better move. Next is, then you need to invest in technology and innovation. अगर ज़्यादा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में आप इन्वेस्ट करेंगे, so that would also increase the efficiency of copper production. Next is strengthen infrastructure. Develop robust infrastructure for transportation and storage of copper. वो भी आप कर सकते हैं. Ultimately import policies को improve कीजिए so that you can streamline and reduce bureaucratic hurdles to ensure a steady supply of copper. I hope everything I have made clear. This is a very important topic. So please, in case if you have liked it, please do like it, subscribe it, share it among all of your friends. Take care. Bye bye. For more information, अगर आप चाहते हैं कि आप डेली प्रैक्टिस करें कुछ क्वेश्चंस का, so you can also join my Telegram channel UPSC with Deepak Prakash.